ओके, आई थिंक ठीक है, सर्विसेज क्लोज है, दैट्स व्हाई ये एरर आया. सो आई नीड टू स्टार्ट द सर्विस फर्स्ट. नेटवर्क स्पेसिफिक, इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर आया तो यही करना है. ओके, so to start with, wait, I'll share this window with you. ओके, तो अगर कभी एरर आया ना, तो एसक्यूएल सर्वर का जो एमएस एसक्यूएल वाला सर्विस है वो चेक करना. यू कैन सी ये स्टॉप हुआ है सर्विस, so you need to start. नहीं तो एसक्यूएल कनेक्ट करते टाइम पे एरर आता है. तो सर्विसेज में जाना है, जस्ट विंडोज में जाके सर्विसेज टाइप करो, सर्विसेज का ये विंडो आ जाएगा. उस पे जाके एमएस एसक्यूएल का सर्विस सर्च करो एंड उसको स्टार्ट कर दो. मैक्सिमम टाइम ये, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पीसी में ये प्रॉब्लम होता है, तो तब ये सॉल्यूशन है. नाउ डन, सर्विस हैज बीन स्टार्टेड. जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. अभी एरर नहीं आना चाहिए. We have to bind which table? That is product table. Just select star from product, return only unique rows. Next, test query. Uh, it gives some error with distinct. So data is okay. It gives error just because I have only one record. Okay. Click on finish. Done. The data is bound to the repeater control. Now I need to make the design for repeater control. So how that design can be given? Okay, I'll take a simple design. ओके, तुम लोग को जैसे चाहिए तुम लोग अलग अलग डिजाइन उसमें दे सकते हो. आई एम प्रोवाइडिंग ओनली अ टेबल. ओके, तो टेबल टैग के अंदर रिपीटर टैग डाल दो. देन विद इन दैट आई विल से टेबल क्लास इक्वल्स टू, we are providing the bootstrap class which is table. Okay, now within this, next I need to provide the header template, footer template, etc. So currently I'm providing the header template. Header template, as you like know, this is totally optional to use. Okay, ph में header में सबसे पहले दिया हम लोगों ने id. As it is admin, तो admin can see every detail. So id, name, फिर description, फिर price, image, quantity. कैटेगरी आईडी दिखाना है तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा. ओके, सो आईडी मुझे जितना रिक्वायर्ड डेटा है उतना ही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ. प्राइस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन and image. Done. Header template is completed. Now we have to start with item template. Now within item template, you just have to display the data by using that entity value variable. Okay. Do the same. Just take a row within that td percent hash eval. Here we have to provide the column names. So I have given the first column name as PID. Then we have to display the product name, then price, quantity, description, and image. Okay. So I will take P name. Then we have to take P description. Then, sorry, third one is price I have taken. Then we have to take quantity. And then I have taken P underscore image. Done. Our code is completed. I have assigned the data to the products table and that data will be visible. Okay. We will save this, go to the admin master.
with an admin master check for the, you can see here for managed products which we we have to give the link as products.espx. Done. Now execute this page. Currently I'm not applying any kind of authentication, and then that's why we can execute this page independently. There is no need to log in or register anything. Okay. So you can see this type of output is displayed. But the problem is what? Here you can see the data is displayed as ID, name, price, quantity, description, image. But at the time of displaying image, it just display the name of that image, which I don't want. What I want is I have to display the actual image over here. Okay, so how it can be displayed? Another thing, let's do one thing. I'll add one more product over here. Okay, so jeans price is say 400. Change to, it is blue. Quantity by default anyhow it is 10. Select the category and then add product. Done. Okay. So once it is done, now you can see here I have two products, and whenever I have added the product, it automatically redirects us to which page? Products.espx. Okay. Understood this much part? Now we have to do the further code. Okay. Now for further code, what we have to do is we need to display an actual image over in this URL. Okay, and how it can be displayed? For that purpose, we have only one option, that is I need to take image control there. Okay, now what exactly image control means? That is the control which is given within this toolbox. Okay, means मुझे image दिखाना है वहां पे, but अब वो कैसे दिखाएंगे? That's what we have to learn. Okay, so let's see. Now for some time just remove this and do not make the use of HTML image over here. You have to use server side control. It's mandatory. Okay, so that's why I have taken image, then and equal to server. After that, simply we will say image URL, because whenever we are using image we have to assign the image URL. So image URL equals to, अब अभी देखो ये स्टेप वाइज प्रॉपर्ली चेक करो, जहाँ पे डबल कोट है वो पहले हटा दो, वहां पे सिंगल कोट डाल दो, इसलिए मैं तुम लोग को स्टेप वाइज दिखा रही हूँ. ओके, फर्स्ट टू रिमूव डबल कोट एंड यू हैव टू पुट सिंगल कोटेशन मार्क, देन हम लोग को वो स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा. सो परसेंट हैश यहाँ तक एज इट इज रहेगा. फिर आपका इमेज कौन से फोल्डर में सेव है? इमेजेस फोल्डर में. सो डबल कोट में filled slash images, because my folder name is images, slash plus entity value in bracket. Column name is what? We have the column name as p underscore image. डन. इतना ही कोड लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है. ओके, यहाँ पे किधर ओके, इतना हुआ. फिर अब देखो, अगर ऐसा लिखूंगी ना, एंड अगर रन करती हूँ जाके, यहाँ पे सेव किया मैंने, इफ आई रिफ्रेश दिस,
What is the problem? It will display the larger images, which I don't want. Okay, इतना बड़ा image तो हम लोग को नहीं दिखाना है. Okay, so I will simply say width या फिर height. इमेज कंट्रोल में हाइट जो था उसको 100 पिक्सल सेव कर दिया. ओके, रिफ्रेश करो. यू कैन सी हाइट एंड विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आ गया एंड आवर प्रोडक्ट इमेजेस displayed प्रॉपर्ली. ओके, तो यहाँ तक तो मेरा टास्क हो गया कि ओके, एंड वेन एवर यू वॉन्ट, हम लोग को जहां पे भी एज इट इज इमेज चाहिए तो मैंने उसी फॉर्मेट में इमेज डिस्प्ले कर दिया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट task? I have to perform editing and deleting these two tasks on the same table. Okay, so how these two tasks will be performed? अब मुझे यूआर लेवल पे कैसे लेना है? एडमिन है ना ये, तो एडमिन में क्या रहेगा? हर एक प्रोडक्ट के आगे यहाँ पे एडिट डिलीट ऐसे दो हाइपरलिंक दिखने चाहिए. ओके, एंड फिर वो हाइपरलिंक के हिसाब से जैसे वो क्लिक करेगा उसको फर्दर लाइक यू कैन से या डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो अलाउ कर देगा. सो लेट्स सी. अब मुझे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू इज आई नीड टू टेक हाइपरलिंक कंट्रोल because I have to provide the two hyperlinks over there. One is edit, another is delete. So let's see. और td ले लो वहां पे. Within a first td we have taken a hyperlink for edit. Okay, फिर पहले मैं दोनों हाइपरलिंक दे देती हूँ. इसको ही कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, डन. फिर जहाँ एडिट लिखा था उधर क्या लिखेंगे? डिलीट. अब दोनों के हाइपरलिंक पे मुझे कौन से पेज पे नेविगेट करना है? एडिट प्रोडक्ट एंड डिलीट प्रोडक्ट के, जो अभी तक मैंने नहीं बनाए. तो चलो पहले वो पेजेस बना के ले लो. सो ऐड. अगर तुम लोग को दो अलग अलग पेजेस चाहिए तो दो पेजेस ले सकते हो, एक पेज में भी ये ऑप्शन हो जाएगा. ओके, मतलब डिलीट के क्लिक पे अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस लाइक यू कैन प्रोडक्ट, अगर वैसा कुछ वहां पे मैसेज रखना है तो आप एडिट एंड डिलीट का एक ही पेज लेके खाली बटन दो ले सकते हो. मतलब एक एडिट का बटन रहेगा, एक डिलीट का बटन रहेगा. बट अगर आपको डायरेक्टली डिलीट के क्लिक पे ही वो डेटा डिलीट करना है, ओके, देन इन दैट केस यू कैन सिंपली मेक द यूज ऑफ लाइक आई कैन से टू डिफरेंट पेजेस. ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू यू, तुम लोग को कैसे चाहिए? एक पेज पे ही दोनों टास्क परफॉर्म करेंगे या वी विल टेक बोथ डिफरेंट? बिकॉज डिलीट का अगर अलग पेज ले रहे हैं तो उसमें वैसे भी कुछ डिजाइनिंग नहीं आता. जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पज हम लोग वहां पे नेविगेट करते हैं, पेज लोड पे ही डिलीट का कोड लिखते हैं एंड अगेन वी आर रिडायरेक्टिंग बैक टू द प्रोडक्ट पेज. सो व्हाट डू यू वांट? एक ही कंफर्मेशन लेके परफॉर्म करना है या डायरेक्टली ऑन क्लिक ऑफ डिलीट वो सीधा डिलीट ही होना चाहिए? So if you're a client, then what will be your requirement? Hello? I'm asking to everyone. Anyone can give the answer. Hello? वो तुझा आवाज काहीच आला नाही, साईडचाच आवाज आला मला फक्त. बाकी सब लोग, किसी को कोई ओपिनियन नहीं देना है क्या? You don't हेलो have to like just listen. You have to respond हेलो. because this is related to project. येतोय आवाज? हाँ बोल. हॅलो. हाँ एकच बोल पेजवर बोल. घेऊया ना, एकच पेजवर घेऊया. Okay. What about like others? क्या है उनका? कोमल, सानिया, सुबह तू म्यूट करा था. ओके मॅम. हाँ सानिया बोलो.
1 पेजेस में ही करना है। ओके, ठीक है। एंड नो वन एल्स वांट टू गिव एनी ओपिनियन? सब कोमल, चित, भाग्यश्री, अकॉर्डिंग टू यू? क्या आना चलते चाहिए एक वहां पेज पे? में क्यों? हाँ एक पेज इज ऑल्सो ओके, बिकॉज द थिंग इज, जब भी हम लोग डिलीट का ऑपरेशन, अभी देखो लास्ट बैचेस में मैंने जो परफॉर्म किया था अलग अलग पेजेस लेके किया था, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बाय मिस्टेक इफ आई क्लिक ऑन डिलीट बटन, मतलब मुझे एडिट पे क्लिक करना है बट गलती से मैंने साइड में डिलीट का जो लिंक है उस पर क्लिक किया, तो वो सीधा प्रोडक्ट डिलीट हो जाता था एंड वी कैनॉट इवन अनडू दोज चेंजेस। ओके, मतलब मैं उसको रोल बैक भी नहीं कर पाती थी। So to avoid that, it is always a best action. That is, we need to give the confirmation first. Like, let the client decide, or you can say user decide whether you want to delete that data or not. If you want to delete that, you can delete. Else, we can simply like navigate back to the products page. Okay, ऐसे. So now hyperlink दिखाते टाइम पे तुम लोग दो दिखा गए हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक ही पेज लेंगे हम लोग. ऐड web form with master, I have taken manage product. admin master लिया. now within this manage product, डिजाइन बाद में करते हैं, पहले हम लोग रीडायरेक्शन का कोड लिखते हैं. तो रीडायरेक्शन के लिए I have given navigate URL equals to. अब नेविगेट यूआरएल में भी मुझे क्या करना है, क्वेरी स्ट्रिंग पास करना है. मतलब क्या, जब मैं वो मैनेज प्रोडक्ट पे नेविगेट करूंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से प्रोडक्ट के आगे वो एडिट या डिलीट बटन पे क्लिक किया है? मतलब मुझे यही प्रोडक्ट को एडिट करना है या ये वाले प्रोडक्ट को एडिट करना है, कैसे स्पेसिफाई करोगे? टू डू द, मुझे उस पेज पे रीडायरेक्ट करते टाइम पे ये जो हमारा प्रोडक्ट का आईडी है उसको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पास दिस आईडी थ्रू दिस, दैट इज थ्रू यूआरएल. तो जो मेरा रिक्वेस्टेड पेज है, रिक्वेस्टेड पेज मतलब कौन सा पेज, जो हमारा मैनेज प्रोडक्ट का पेज है, वी विल स्पेसिफाई to that page, okay, the request is sent from the product.aspx, and through this request you have to manage a product with product id as what, 10, or product id as 11, whatever it is. Okay, so let's see how to pass this query string value. To do the same, again navigate url के बाद single quotation ही लेना है, within that use %#. अब हमारा प्रोडक्ट का यूआरएल, मतलब जो हमारा पेज का यूआरएल है, so page URL is manage product dot aspx question mark id equals to, तुम लोग यहाँ पे कॉलम नेम नहीं लोगे तो चलेगा, id equals to ऐसे ही लिख सकते हो, प्लस eval, उसमें वैल्यू क्या पास होना चाहिए, प्रोडक्ट का. डन. So this is how the data, or you can say value, can be passed. Okay, now just copy this same navigate URL and paste it over here. Done. The work is completed. Okay. Other than that, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अदर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लाइक यू कैन से यहाँ से स्टाइलिंग अगर हम लोग को देना है तो स्टाइलिंग भी दे सकते हैं. ओके, डन. अभी इतना हुआ. नेक्स्ट, इसको सेव करो, पहले इतना ही चेक कर लेते हैं कि पेज पे कैसे आ रहा है. सो यू कैन सी एडिट एंड डिलीट ऑप्शन यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगी, वो रीडायरेक्ट कहाँ पे कर, मैनेज प्रोडक्ट, आईडी का पास हुआ 11. अगर मैं सपोज यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगी तो आईडी क्या मिल रहा है मुझे, 10. तो मतलब थ्रू दिस क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यू आई कैन आइडेंटिफाई कि मुझे कौन प्रोडक्ट एडिट या फिर डिलीट करना है, राइट. सो टू डू द सेम, अब हम लोग को आगे का कोड लिखना है. सो what we require is I need to design that edit page. So to design that page, अब next कैसे करोगे बता देती हूँ. Go to the manage product. सबसे पहले एक पैनल ले लो. ओके, क्यों लेना है वो बाद में बता देती हूँ. अभी पैनल लिया, पैनल में मुझे क्या करना है, जो एडिट के लिए तुम लोग को कोड है ना वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ओके, मतलब एडिट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए,
तो तुम लोगों ने विंडोज एप्लीकेशन में अपडेट का कॉन्सेप्ट सीखा था, अपडेट एम्प्लॉय का। अपडेट एम्प्लॉय में हम लोग कैसे करते थे, जो आईडी में ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करती थी, उसी आईडी के डिटेल्स नीचे सब टेक्स्ट बॉक्सेस में दिख जाते थे। ओके, एंड फिर आप उस टेक्स्ट बॉक्स में से जो डेटा आपको चाहिए वो डेटा आप फेच करते थे, एंड लाइक उसमें चेंजेस करके अपडेट के क्लिक पे अपडेट करते थे, नहीं तो क्लिक करते थे। यहाँ सही कि मैं करंट से, जैसे कि प्रोडक्ट से मैनेज प्रोडक्ट्स पर नेविगेट करूं, तो जो भी प्रोडक्ट सिलेक्टेड है हमारा, जैसे कि विथ आईडी 10 विथ आईडी 11, तो वो प्रोडक्ट का डेटा पहले मुझे दिखाना पड़ेगा यूजर को। ओके, दिस इज द करंट डिटेल। अभी इसमें से आपको क्या चेंज करना है वो आप खुद डिसाइड करो। ओके, सो टू डू द सेम आई विल रिक्वायर अ डिजाइन पेज। ओके, जहां पे मैं ये पूरा डेटा डिस्प्ले कर पाऊं। ओके, सो लेट्स सी हाउ दैट डेटा कैन बी डिस्प्लेड। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, आईडी, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स ले लो, सॉरी आईडी के आगे लिटरल लेंगे हम लोग, बिकॉज आईडी मुझे अनएडिटेबल दिखाना है। ब्रेक टैग लिया, तुम लोग ये पूरा टेबल के थ्रू एडिटिंग करोगे। अगर तुम लोग को नहीं पता कि टेबल में कैसे लेना है, मतलब जस्ट फॉर अलाइनमेंट दिस इज बेटर, दिखते टाइम पे बहुत अच्छा दिखता है वो। तो क्लास इक्वल टू टेबल, अगर बॉर्डर वाला लेना है तो बॉर्डर वाला भी ले सकते हो। देन within a first row what we have to take is td, or I will say th, id, td, literal, इतना लिया। फिर सेकेंड, दिस इज इजी एंड यू नीड टू लर्न की आप कोडिंग थ्रू भी ये कैसे करो। फिर लिया नेम, देन td, उसका टेक्स्ट बॉक्स, मतलब नेम के आगे क्या आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए। फिर इसको ही कॉपी पेस्ट करते जाओ। फिर मुझे अगर सपोज दिखाना है प्राइस, फिर क्वांटिटी, देन आई हैव टू डिस्प्ले द डिस्क्रिप्शन। आफ्टर दैट हम लोग को इमेज दिखाना है या इमेज शो करना है, जो भी है। एंड फिर आएगा आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो वेट, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ बिकॉज टेक्स्ट बॉक्स बना जाएंगे उतने। तो नेम, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए था, प्राइस, तो प्राइस के लिए टेक्स्ट बॉक्स 3 इज टोटली फाइन। फिर हम लोग को चाहिए क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स ठीक है। फिर हम लोग को चाहिए डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसके लिए खाली यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, टेक्स्ट मोड एज मल्टी लाइन। ओके, फिर हम लोग को क्या चाहिए, इमेज दिखाना है। ओके, बट इमेज मुझे कैसे दिखा दे टाइम पे, तो यहाँ पे मैं पूरा इमेज तो नहीं दिखा सकती। ओके, बिकॉज वी आर नॉट बाइंडिंग द डेटा डायरेक्टली। ओके, वो तो मैं वहां से बाइंड करूंगी जहाँ पे लाइक यू कैन से डेटाबेस है। तो अगर आपको इमेज दिखाना है एज वेल एज साइड में चेंज करने का भी ऑप्शन रखना है, दोनों ऑप्शन देना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे फाइल अपलोड लेना पड़ेगा एंड उसके आगे इमेज कंट्रोल ले लो, मतलब सिलेक्टेड इमेज कौन सा है एंड फाइल अपलोड में कौन सा जा रहा है वो। उसके बाद लास्ट हम लोग को क्या चाहिए, टीआर। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी का भी सेम इशू आएगा, अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाओगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो ऑल कैटेगरीज दिखेगा। सो इट इज ऑलवेज बेटर चॉइस कि कैटेगरी आईडी खाली यहाँ पे दिखा दो, आईडी ही दिखा दो, आपको नेम दिखाने की जरूरत नहीं। अगर मुझे पता है कि उसका कैटेगरी चेंज करना है, सो इफ आई एम एडमिन तो ऑब्वियसली मुझे पता रहेगा कि अब उसके लिए कैटेगरी क्या प्रोवाइड करना है। तो जस्ट आप नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्सेस के थ्रू दिखाओगे तो भी चल जाएगा। कैटेगरी टेक्स्ट बॉक्स 5 फाइन। अब लास्ट क्या बचा, बटन लेना बाकी है। एंड ये बटन पे मैंने टेक्स्ट दिया एडिट प्रोडक्ट, डन। कितना हुआ, लेट्स चेक द डिजाइन फर्स्ट। ओके, तो करंटली माय डिजाइन लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, ऐसे मेरा पूरा डिजाइन आ रहा है, जिसमें अभी मुझे आईडी, वो टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा सब शो करना बाकी है। हम लोगों ने जस्ट अभी डिजाइन दिखाया, नथिंग एल्स। ओके, अब बटन को भी एक क्लास दे दो। तो बूटस्ट्रैप का क्लास देने के लिए सीएसएस यूज करना पड़ता है, btn
इन्फो रख दिया उधर, ऐसे दिखेगा वो। डन। अब मुझे क्या करना है, एडिट के लिए लुक एंड फिल थोड़ा अलग, मतलब यहाँ पे फॉर्म अलग लोड होना चाहिए, डिलीट के लिए फॉर्म अलग लोड होना चाहिए। ओके, तो अब हमारा पैनल यहाँ पे खत्म हो गया, पैनल 1। सिमिलरली अनदर पैनल ड्रैग एंड ड्रॉप करो। उस पैनल पे क्या करना है, सिंपली एक खाली लिटरल ले लो। ओके, लिटरल के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, एंड फिर डू यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। ओके, और आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। ओके, ऐसे कुछ आप मैसेज डाल सकते हो। ओके, एंड इफ आई सिंपली से यस, ओके, देन वो प्रोडक्ट डिलीट होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चेक बॉक्स लिया। डिजाइन में कैसे क्या क्या करना है उतने चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं आता कि आपको डिजाइन में लाइक चेक बॉक्स लेना ही पड़ेगा, ये सब हमारा चॉइस है कि व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डिस्प्ले। तो मैंने यस करके लिखा उधर, एंड फिर लास्ट में बटन लिया। ओके, तो उसके बाद चेक बॉक्स के बाद मुझे ब्रेक टैग देना पड़ेगा। इसको CSS क्लास दे दी। btn अगेन इन्फो, सेम लुक एंड फिल रखना है तो इन्फो, एंड यहाँ पर मैंने डिलीट ऐसे दिया। अब देखो इसको रिफ्रेश करेंगे तो कैसे दिखेगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, डू यू वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, यस। अगर यस मतलब चेक बॉक्स चेक रहेगा तो डिलीट करेगा, बट एट अ टाइम मुझे दोनों दिखाना है क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगी तो खाली एडिट का पोर्शन दिखना चाहिए, अगर मैं डिलीट पे क्लिक करूंगी तो खाली डिलीट का पोर्शन दिखना चाहिए। तो अब तुम लोग आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि मैंने एडिट पे क्लिक किया या डिलीट पे क्लिक किया। ओके, वो भी तो एक प्रॉब्लम है, बिकॉज दोनों के क्लिक पे मेरा नेविगेट यूआरएल तो सेम ही है ना, मैनेज प्रोडक्ट ही है। ओके, सो उसके लिए हमारे पास और एक ऑप्शन होता है। so what that option is, I'm adding all these things just to, like you can say, add some more features and some more type of code। मतलब जो कोड जनरली तुम लोग R&D करके भी नहीं निकालते, बिकॉज जब तक तुम लोग को टास्क नहीं दिया जाता तुम लोग कुछ अलग एक्स्ट्रा करने का सोचते नहीं हो। ओके, सो लाइक जितना मैंने दिया उतना ही करते जाते हो। सो हाउ यू विल लर्न कि अगर ऐसा कभी रिक्वायरमेंट आया तो क्या करोगे तुम लोग। ओके, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन है कि आप क्वेरी स्ट्रिंग में क्या करोगे, यू विल पास टू डिफरेंट क्वेरी स्ट्रिंग वैल्यूज। ओके, एंड हम लोगों ने स्टेट मैनेजमेंट में सीखा था क्वेरी स्ट्रिंग पास करने के लिए what option we have, we can separate those query string by using ampersand। so ampersand next query string क्या है हमारा, that is name equals to, और you can say operation equals to, अगर मैंने ed लिखा, ed is nothing but edit, एंड यहाँ पे फिर से प्लस डाल दिया। ये हम लोग को अंदर डालना है यहाँ पे। ओके, सो ऑपरेशन इज dl। डन। ओके, सेव किया, नेविगेट बैक टू द मैनेज प्रोडक्ट्स पेज, रिफ्रेश हुआ होगा वो ऑलरेडी। यू कैन सी, अब जब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ऑपरेशन क्या आया, एडिट। अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रही हूँ तो ID 11, ऑपरेशन क्या मिला, डिलीट। तो यहाँ पे तुम लोग को आइडेंटिफिकेशन वैल्यू मिल रहा है कि आप एडिट पे क्लिक कर रहे हो या डिलीट पे क्लिक कर रहे हो। अब इतना होने के बाद लेट्स नेविगेट बैक टू द कोड। अब तुम लोग मैनेज प्रोडक्ट के पेज लोड इवेंट पे जाओ। ओके, पेज लोड इवेंट पे हम लोग को बहुत सारा कोड लिखना है, बट ओनली फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इफ नॉट इज पोस्ट बैक, ये यूज करना पड़ेगा जो उस दिन मैंने तुम लोग को सिखाया था। आज ये डेमो होने के बाद मैं तुम लोग को लाइफ साइकिल भी सिखा दूंगी पेज का, बिकॉज वो हमारा बाकी है एंड इट्स ओनली अ थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, सो इफ नॉट इज पोस्ट बैक, इसमें पहले
क्या चेक करोगे कि if request dot query string operation dot value dot to string, क्यों नहीं आ रहा है, if it is exactly equal to what, ed, that is edit, मतलब अगर मेरा क्वेरी स्ट्रिंग का लाइक ऑपरेशन करके जो क्वेरी स्ट्रिंग है उसका वैल्यू अगर एडिट रहेगा तो आप क्या करोगे, पैनल 1 डॉट विजिबल, ये दोनों पैनल को मैं अभी पहले इनविजिबल करके रख देती हूँ, इक्वल टू ट्रू, एंड इन द सेम वे if the operation is del, that is delete, then panel 2 dot visible equal to true. Okay, and on page load हम लोग को क्या करना है, जो मेरा पहला पैनल था उसको भी विजिबल फॉल्स रखना है, और जो मेरा सेकेंड था पैनल उसको भी विजिबल फॉल्स रखना है. ओके, लेट्स सी, अभी ये ट्राई करके देखते हैं कि ये कोड वर्क हो रहा है कि नहीं. ओके, तो एडिट पे क्लिक किया, पैनल 1 ही दिख रहा है, अभी पैनल 2 दिख रहा है क्या मेरा, नहीं. फिर अगर मैं डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो खाली डिलीट का कोड दिख रहा है, एडिट का नहीं दिख रहा है. अंडरस्टूड मैंने कैसे किया, यहां तक किसी को डाउट है? ओके, सो इतना तो समझा हम लोगों ने स्टेप. अभी थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर लेती हूँ बिकॉज हम लोगों ने बहुत कुछ कोड लिख दिया. सिंपली मैंने प्रोडक्ट्स डॉट एएसपीएक्स पे रिपीटर लेके उसको प्रोडक्ट टेबल बाइंड कर दिया. फिर प्रोडक्ट का जितना डेटा हम लोग को दिखाना था वो सब डेटा हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट मुझे जो प्रोडक्ट इमेज है वो इमेज फॉर्मेट में ही चाहिए था, इसलिए मैंने इमेज कंट्रोल लेके उसको इमेज यूआरएल असाइन कर दिया. ओके, जस्ट इमेज यूआरएल असाइन करते टाइम पे फॉर्मेटिंग देना मैटर करता है एंड वो फॉर्मेटिंग प्रॉपर ही देना पड़ेगा. सिमिलरली फिर उसके बाद मैंने मैनेज प्रोडक्ट्स करके एक पेज बना दिया, एंड उस पेज पे सिंपली हम लोगों ने क्या किया कि वी हैव टेकन a navigate URL, sorry, we have taken two hyperlink which will redirect us to manage product. मैनेज प्रोडक्ट पे मैंने एडिट एंड डिलीट के लिए दो पैनल में पहले से डिजाइन करके रख दिया. ओके, वो डिजाइन होने के बाद मेरा रिक्वायरमेंट कैसा था कि एडिट एंड डिलीट पे मैं सेम मैनेज प्रोडक्ट पे ही नेविगेट करूंगी. बट जब हम लोग नेविगेट कर रहे हैं तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू मैं दो वैल्यू पास कर रही हूँ. एक तो आईडी, मतलब आपने कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट किया वो, एंड दूसरा ऑपरेशन, मतलब मैंने एडिट के बटन पे क्लिक किया है या डिलीट के बटन पे क्लिक किया है, मतलब हाइपरलिंक पे. ओके, सो टू आइडेंटिफाई द सेम हम लोगों ने क्या किया, वहां पे ऑपरेशन इक्वल टू ईडी एंड ऑपरेशन इक्वल टू डीएल ऐसे लिखा. देन मैनेज प्रोडक्ट पे हम लोग जब पेज लोड हो रहा है पहले से दोनों पैनल हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसेबल करके, यू कैन से इनविजिबल करके रख रहे हैं, हाइड करके रख रहे हैं. ओके, एंड जब भी हमारा वहां पे लाइक यू कैन से क्वेरी स्ट्रिंग का वैल्यू फेच होके ऑपरेशन आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडेंटिफाइड ऑपरेशन हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा पैनल पहले विजिबल होगा. वेट, मैंने गलती से ऊपर क्लिक कर दिया. सो यू कैन सी, अगर मेरा ऑपरेशन एडिट है तो पैनल 1 विजिबल, नहीं तो पैनल 2 विजिबल. यहां तक तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? फ्लो एवरीथिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोजेक्ट में इशू आ सकता है, इसीलिए अभी भी कुछ डाउट है तो बोलो. ओके, अब इतना होने के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कैसा है कि दोनों के केस में मुझे प्रोडक्ट को डेटा बाइंड तो करना ही पड़ेगा ना. ओके, सो टू बाइंड दैट डेटा आई नीड टू टेक अ कनेक्शन. ओके, सो कनेक्शन यहाँ पे पब्लिकली बना के रखो.
once that connection is created within is post back. Okay, पहले ही SQL कमांड लिख के वो डेटा फेच करके ले लो. So SQL command, its object equal to new SQL command. In bracket, our query is, sorry, our procedure name is product crude. Because हमने उसमें already select action लिखा है. Okay, comma connection. फिर cmd dot. Next step क्या रहता है हमारा? Command type equals to command type dot stored procedure. फिर आपको एक्शन देना भी तो मैंडेटरी है. तो एक्शन देने के लिए हम लोगों ने कल क्या सीखा था? कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू इन ब्रैकेट. सबसे पहले हम लोग को क्या देना पड़ेगा? एक्शन. ओके, तो एक्शन के लिए शायद से मैंने क्या लिखा था? हाँ, एसीटी ही लिखा था, करेक्ट. तो एक्शन कॉमा, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए अभी? सिलेक्ट. ओके, कल मैंने जो वेबसाइट 2 का फोल्डर अपलोड किया था ना ड्राइव पे, उसी फोल्डर में मैंने ये एसक्यूएल का एक स्क्रिप्ट अपलोड कर दिया है जिसमें वो लाइक स्टोर्ड प्रोसीजर वाला कोड लिखा हुआ है. एसक्यूएल क्वेरी 1 करके तुम लोग को एक फाइल मिल जाएगा डॉट एसक्यूएल का. तो वो फाइल में पूरा स्टोर्ड प्रोसीजर का कोड है, वो बाद में चेक कर लेना. ओके, तो एक्शन दिया. अभी एक्शन देने के बाद मुझे कोड रन भी तो करना पड़ेगा. ओके, सो टू रन दैट कोड आई नीड टू ओपन द कनेक्शन फर्स्ट. सो आई हैव ओपन द कनेक्शन. फिर एज इट इज सिलेक्ट कमांड, तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेथड कौन सा यूज करना पड़ेगा? Which method we have to use for executing select command? And वो मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? बोलो. Which method is used to execute select command and what is the return type of that method? Just like for DML command you have to use execute non query. तो वैसे ही select के लिए क्या यूज करते हो? किसी को याद नहीं है? एडीओ का तो हम लोग इतना टाइम प्रैक्टिकल अभी भी कर रहे हैं इनफैक्ट. ओके, रजिस्ट्रेशन का किया, लॉगिन का किया, हर एक इसमें तो लाइक सेम एडीओ डॉट नेट ही यूज हो रहा है ना. फिर याद तो होना चाहिए अभी. आई एम आस्किंग टू एवरीवन. किसी को पता ही नहीं है क्या? एस नो जो भी है बता दो. एसक्यूएल डेटा रीडर. एसक्यूएल डेटा रीडर वी हैव टू यूज. एंड मेथड कौन सा रहेगा? ये तो रिटर्न टाइप हो गया, उसके लिए मेथड कौन सा यूज करते हैं हम लोग? टीआर. हेलो, एनीवन एल्स? एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट रीडर. ओके, अगर तुम लोग को आंसर पता है तो आंसर देने के लिए इतना टाइम क्यों लगाते हो? डेटा रीडर इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर. ओके, डन. एग्जीक्यूशन तो हो गया. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज तुम लोग को नेक्स्ट क्या करना है? वी हैव टू एग्जीक्यूट दिस. अभी ये तो एग्जीक्यूट हो गया, डीआर मिल गया. अब यहाँ पे चेक करोगे कि अगर मेरा एडिट का ऑप्शन है तो एडिट में तो मुझे पूरा का पूरा डेटा फेच करके बाइंड करना है. तो सिंपली आई विल से इफ, सॉरी, अरे हाँ, वेट वेट वेट, मेरा एक यहाँ पे रह गया. हम लोग को प्रोसीजर में और एक ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पे तो पूरा डेटा मिल जाएगा ना हम लोग को. वी डोंट वांट द कंप्लीट डेटा. व्हाट वी वांट इज मुझे ऑन द बेसिस ऑफ आईडी डेटा फेच करना है. जैसे प्रोडक्ट आईडी 11 का, प्रोडक्ट आईडी 10 का. तो क्वेरी कैसे लिखना पड़ेगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इक्वल्स टू. ओके, सो वेट, विल मेक द चेंजेस ओवर हियर.
आई विल ओपन द सेम फाइल जो हम लोगों ने कल सेव करके रखा था, एंड देन वी विल ऑल्टर दैट स्टॉर्ट प्रोसीजर। अगर पूरा स्टॉर्ट प्रोसीजर के थ्रू ही करना है तो, नहीं तो सीधा उधर क्वेरी लिखते हो तो भी चल जाता है। तो अल्टर द स्टॉर्ट प्रोसीजर, क्रिएट के जगह पे सबसे पहले क्या लिखोगे, अल्टर। फिर इफ में खाली और एक कंडीशन ऐड कर दो कि इफ @action इक्वल टू सर्च। ओके, नाउ ये सर्च मतलब आपका सर्च फंक्शनैलिटी नहीं है, जो वेयर क्लॉज के साथ मुझे सिलेक्ट कमांड देना है वो। सो इफ इट इज सर्च देन आई विल से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID इक्वल टू @PID। डन। ओके, लिखा इतना। अब इसको रन करो, बिकॉज अब मुझे ये वाला सर्च फंक्शनैलिटी लगेगा। अरे हाँ सॉरी, पहले ये सिलेक्ट किया ही नहीं मैंने। ओके, सो start procedure is executed successfully. Once it is done, instead of select, हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन क्या देंगे, सर्च। एंड सर्च दे रहे हैं तो आपको पैरामीटर कौन सा वाला रिक्वायर्ड है, आईडी पर मैंडेटरी है। बिकॉज अगर सर्च का क्वेरी आपने देखा होगा तो मैंने क्वेरी क्या लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर PID इक्वल टू @PID, मतलब एक्शन के साथ साथ वो प्रोडक्ट आईडी देना भी मैंडेटरी है। सो आई विल से PID कॉमा प्रोडक्ट आईडी मुझे कहाँ से मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग इन ब्रैकेट, मैंने क्वेरी स्ट्रिंग को नेम क्या दिया है, ID डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक ऑलमोस्ट हर एक बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक लाइक प्रॉब्लम हुआ है दैट वो लोग यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, या फिर लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट का कंफ्यूजन ही होता है कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग में जो लेना है वो यहाँ पे दिया, मतलब जो कॉलम नेम है वो लेना है। तो इट्स नॉट अ कॉलम नेम, इट्स अ क्वेरी स्ट्रिंग नेम। जो तुम लोग क्वेश्चन मार्क के बाद लिख रहे हो वही तुम लोग यहाँ पे दोगे। सेकेंड थिंग, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट मैनेज प्रोडक्ट डॉट ASPX पेज इंडिविजुअली, मतलब आप सीधा ये पेज रन करोगे तो एरर आएगा बिकॉज आपको ये डेटा नहीं मिल पाता। तो कंपल्सरी मैनेज प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट कहाँ से करना है, थ्रू दिस प्रोडक्ट पेज ओनली। ओके, सो ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं। नाउ डन, सेलेक्ट का क्वेरी सर्च का क्वेरी दे दिया जिसमें वेयर क्लॉज लिखा हुआ है। अब आपको खाली क्या करना है, एग्जीक्यूट करके उसका डेटा बाइंड करके लेना है। सो आई विल से इफ dr.read, मतलब अगर डेटा रीडर में कुछ डेटा मिल रहा है, मतलब अगर मुझे वो प्रोडक्ट डेटा मिला तो हम लोग क्या करेंगे, सब डेटा असाइन करना है लिटरल प्रोडक्ट उस पे। सो literal1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr, लिटरल पे क्या दिखाना है हम लोग को, प्रोडक्ट आईडी ना। सो dr प्रोडक्ट आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखो मैंने dr01 ऐसे नहीं लिखा, इट्स जस्ट बिकॉज तुम लोग का कंफ्यूजन ना हो कि अरे जीरो मतलब वो उधर एक्चुअली प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही आता है कि काउंट में कभी कभी गड़बड़ हुआ ना, तो प्राइस के टेक्स्ट बॉक्स में क्वांटिटी दिखता है, क्वांटिटी के टेक्स्ट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दिखेगा, डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट बॉक्स में क्वांटिटी दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा कॉलम नेम ही डीआर में दे देंगे। तो literal1 पे मुझे क्या दिखाना है, आईडी। फिर टेक्स्ट बॉक्स नेम को हम लोग क्या देंगे, नेम txt नेम। ये मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि चेंज करके ले लो तो अच्छा रहता है। txtqn दैट इज क्वांटिटी, फिर txt डिस्क्रिप्शन, फाइल अपलोड वन तो एज इट इज रहने दो, एंड यहाँ पे क्या है txt cid। डन। अब literal1 दे दिया, सिमिलरली यू विल से txt नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू dr, यहाँ पे कॉलम नेम जाएगा, सो pname डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, इन द सेम वे नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, txt प्राइस। कॉलम का सीक्वेंस यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता, खाली वैल्यू प्रॉपर देते जाओ, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू डिस्प्ले करना है वो। सो क्वांटिटी इक्वल्स टू p डिस्क्रिप्शन
फिर लास्ट में क्या बचा, CID इक्वल टू CID। अब बचा क्या, दैट इज इमेज। ओके, सो इमेज के लिए कैसे लिखोगे, image1 डॉट इमेज URL इक्वल्स टू टिल्ड स्लैश। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमेज को इमेज URL कोडिंग के थ्रू कैसे देते हैं। हम लोगों ने ये तो सीखा है कि सोर्स में जाके, मतलब डिजाइन के यहाँ पे जाके कैसे देना है, वो तो पता है। ओके, बट अगर कोडिंग से कभी देना पड़े .cs फाइल से, तो उसके लिए टिल्ड स्लैश इमेजेस प्लस क्या लिखोगे, dr प्रोडक्ट इमेज डॉट टू स्ट्रिंग। डन हो गया, सब डेटा आसान हो जाएगा, कंप्लीटेड। सेम अगर डिलीट ऑपरेशन है तो तुम लोग क्या करोगे, इफ आई विल से सॉरी इफ dr.read, इसलिए मैंने वो डेटा रीडर पहले ही ले लिया इफ के पहले, बिकॉज मुझे बार बार वो कोड रन ना करना पड़े। तो इफ dr.read, अभी यहाँ पे तो खाली मैंने लिटरल लिया था, तो लिटरल 2.text, ज्यादा कुछ डेटा दिखाने की जरूरत नहीं है। आई विल से H4 में ही मैंने लिखा सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज, खाली प्रोडक्ट का नेम दिखा दो। सो प्रोडक्ट नेम कैसे दिखाओगे, dr pname डॉट टू स्ट्रिंग एंड फिर H4 टैग क्लोज। ओके, हम लोग खाली दिखा रहे हैं कि ओके तुमने ये वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, अब तुम्हें डिलीट करना है कि नहीं वो तुम खुद चूज करो। ओके, यहाँ तक तो हुआ, पहले इतना ही टेस्ट करके देखते हैं अभी। सो सिंपली नेविगेट बैक टू मैनेज प्रोडक्ट्स, मतलब products.aspx पे मैंने नेविगेट किया। Then now if I click on edit, you can see अभी इसको मुझे हाइट पहले सेट करना पड़ेगा। इधर तो उसका हाइट, नहीं तो वो बहुत बड़ा दिख जाएगा। हाँ, so now it is properly visible, तो you can see ID प्रॉपरली 10 आ गया, शर्ट 1 दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है 20, डिस्क्रिप्शन, चूज फाइल एंड जो सिलेक्टेड इमेज है वो दिख रहा है, कैटेगरी ID 10 दिख रहा है। डन। फिर अगर सपोज मैंने ये वाला इस पे एडिट क्लिक किया तो यू कैन सी ID 11, जीन्स का जितना डिटेल था वो सब आ गया है यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम है क्या, नो, जैसे मुझे चाहिए था अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट सेम डेटा लोड हो रहा है। अब डिलीट का देखते हैं, डिलीट पे क्या दिख रहा है, सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज जीन्स, so do you want to delete this product, yes पे क्लिक किया तो डिलीट होगा, नहीं तो डिलीट नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड दिस मच पार्ट, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, हेलो, एनी डाउट? ओके, बाद में फिर नहीं बोलना है कि मुझे ये नहीं समझा वो नहीं समझा। ओके, सो डन, इतना हुआ। अब हम लोग को फाइनल कोड लिखना है, जैसे कि मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए, डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए। सो कोड इज वेरी सिंपल, अभी आगे का ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सिंपल टास्क है तुम लोग का। जस्ट go to the design, double click on edit product button, this is the button for edit। ओके, तो एडिट के लिए क्या करोगे, सीधा कनेक्शन तो पहले से क्रिएटेड है, खाली SQL कमांड लिखो, इट्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू SQL कमांड। अभी ये कमांड लिखने से पहले आपको पहले इमेज का URL का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज देखो कभी मेरा इमेज में, मतलब अगर मैंने फाइल अपलोड से कुछ सिलेक्ट किया तो ही नया वाला इमेज अपलोड होना चाहिए, नहीं तो क्या, जो पुराना वाला हमारे पास इमेज है वो एज इट इज अपलोड होना चाहिए। सो यू विल सिंपली से इफ
फाइल अपलोड वन डॉट हैज फाइल, मतलब अगर मैंने फाइल सिलेक्ट किया है तो इमेज में क्या जाएगा, फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, एंड जो फाइल मैं डेटाबेस में सेव करूंगी वो मुझे हमारे फोल्डर में भी सेव करना है। तो कल उसके लिए हम लोगों ने मेथड देखा था कि फाइल अपलोड वन डॉट सेव एज इन ब्रैकेट सर्वर डॉट मैप पाथ, उसमें क्या लिखा था हम लोगों ने, टिल्ड स्लैश इमेजेस स्लैश प्लस फाइल अपलोड वन डॉट फाइल नेम, एल्स मतलब अगर वो फाइल सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो इमेज इक्वल टू क्या जाएगा, इमेज वन डॉट इमेज यूआरएल, मतलब जो इमेज यूआरएल हम लोगों ने असाइन किया था वही फेच करके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। हाँ, बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि इमेज यूआरएल में हमारा ये पूरा यूआरएल जाता है, टिल स्लैश इमेजेस वगैरह वो सब। तो डू वन थिंग, ऊपर एक वेरिएबल लेके रखो, पब्लिकली लेना पड़ेगा हम लोग को, वो स्ट्रिंग वेरिएबल आई लिया एंड उस वेरिएबल को इनिशियलाइज यहाँ पे करोगे, आई इक्वल टू प्रोडक्ट इमेज डॉट टू स्ट्रिंग, डन। एंड फिर यहाँ पे एल्स में खाली वही सेम वेरिएबल आई को असाइन कर दो, डन। इमेज का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब कमांड में तुम लोग क्या लिखोगे, द कमांड इज प्रोडक्ट क्रूड, ओके, कॉमा कनेक्शन, फिर आगे का ऑलमोस्ट सेम कोड जो ऊपर लिखा है, यहाँ तक तो एज इट इज उठा के ले लो, ओके। फिर बाकी सब भी डेटा असाइन करना है, जैसे कि आईडी नेम जो भी है सब वैल्यूज हम लोग को असाइन करना पड़ेगा। सो जस्ट बिकॉज मैंने ऐड प्रोडक्ट पे वो कोड लिखा था तो एज इट इज उठा लिया। टीएक्सटी नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सीआईडी के लिए अभी मेरा क्या है, टीएक्सटी सीआईडी, क्वांटिटी के लिए टीएक्सटी क्यूएन लिखा है मैंने। फिर इमेज के लिए हम लोगों ने अभी कौन सा वेरिएबल लिया, आई एम, एंड बचा क्या अभी, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू इन ब्रैकेट पीआईडी, कॉमा पीआईडी कहाँ पे सेव है, लिटरल वन पे, तो लिटरल वन डॉट टेक्स्ट एंड ऑपरेशन विल बी एडिट, अंडरस्टूड। प्रोसीजर कॉल किया, प्रोसीजर को जितना डेटा पास करना था, जैसे कि एक्शन एडिट जाएगा, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, सीआईडी, क्वांटिटी, इमेज, आप कुछ भी चेंज करो इसमें से सब पास हो जाएगा। देन आई नीड टू एग्जीक्यूट दिस, सो एज इट इज कनेक्शन ओपन करो, इफ cmd dot execute non query is greater than 0, then we'll redirect to which page, response dot redirect in bracket products dot aspx page, and then connection close, understood। सिंपल कोड लिखा हम लोगों ने। एडिट के लिए जनरली हम लोग को इतना ही कोड लिखना पड़ता है कि खाली प्रोसीजर कॉल करो, एडिट का फंक्शनैलिटी दे दो एंड जितने भी मॉडिफाइड वैल्यू है वो पास करो। बट जस्ट बिकॉज इमेज के केस में हमारे पास दो ऑप्शन थे कि आइदर आई विल सिलेक्ट इमेज और आई विल नॉट सिलेक्ट इमेज, मतलब लाइक दोनों में से कुछ भी एक हम लोग परफॉर्म करने वाले थे, इसलिए मैं पहले से चेक करी, अगर इमेज सिलेक्ट किया तो जो सिलेक्टेड इमेज है वो जाएगा, एंड यहाँ पे फाइल अपलोड में मैंने कुछ चूज ही नहीं किया, तो एज इट इज जो पहले से इमेज था वो उधर सेव हो जाएगा। सो इतना हुआ, एडिट का कोड समझा। अब नेक्स्ट इज डिलीट का। डिलीट के कोड में ज्यादा आपको कुछ एक्स्ट्रा लेंथी नहीं करना है, सिंपल, जस्ट चेक इफ चेकबॉक्स 1 इज चेक्ड, मतलब अगर मैंने यस बोला तो ही क्या होगा, लाइक डेटा लाइक डिलीट हो जाएगा, एल्स डेटा डिलीट नहीं होगा। सो इफ checkbox 1 dot checked, then
provide the command. So SQL command, its object, you will new SQL command. Provide the procedure name, so product rule, comma, connection. फिर उसका कमांड टाइप एंड एक्शन में क्या जाएगा, डिलीट. अभी डिलीट के लिए कितने पैरामीटर चाहिए, एक ही चाहिए. दैट इज कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू इन ब्रैकेट. आई विल से PID comma same request dot query string product ID dot to string. Okay, once the data is passed, आएगा सेम. कनेक्शन ओपन करो, क्वेरी को एग्जीक्यूट करो, रीडायरेक्ट टू प्रोडक्ट पेज एंड देन कनेक्शन क्लोज. एल्स क्या करोगे, अगर चेकबॉक्स वन डॉट चेक, अगर सपोज अगर मैं यस नहीं बोल रही हूँ, डायरेक्टली क्लिक कर रही हूँ डिलीट बटन पे. ओके, सो मैं वहां पे एक मैसेज प्रिंट कर दूंगी, response dot write script alert operation failed, select checkbox first. Script tag close. Done. ऐसे लिखोगे. So let's see. Executed. Okay, so hello. So you can see this data like output is displayed now. Once it is done, just click on edit. Let's edit some data. Okay, so instead of jeans, I'll give some another name. Say I have given denim jeans. Okay, we'll change the price 1000, quantity 10. Description will be remain as it is. Now I'm not selecting image. Okay, I'll keep this image as it is. We'll just change the and the category will also remain as it is. Just click on edit product. Okay, now you can see there is some exception occur and that's why वो same page reload होके आ रहा है. So I need to check for that exception first. Okay, so how you will check, अभी तो कुछ आ नहीं रहा है वहां पे, तो बटन था, पहले तो इवेंट हैंडलर अटैच हुआ है क्या, सो इवेंट हैंडलर इज ऑलरेडी बाइंड. गड़बड़ कहाँ पे हो गया, एक्शन एडिट. ओ सो यू कैन सी उसको एक्शन नहीं मिल रहा है वहां पे. एक्शन मैंने एडिट लिखा बट हमारा डेटाबेस में एक्शन क्या था, अपडेट. ओके, सो वंस इट इज मॉडिफाइड, just execute this page again. ओके, डन. एग्जीक्यूशन हो गया. अब एडिट पे क्लिक करो, जस्ट लाइक अभी मैंने चेंजेस किया था. बाकी सब एज इट इज रखा. नाउ यू कैन सी एडिट तो हो गया बट प्रॉब्लम इज जो मुझे इमेज चाहिए था वो इमेज यहाँ पे असाइन नहीं हुआ. इट सिंपली मीन्स अगर मैं जाके चेक करूं तो आई थिंक वहां पे नल वैल्यू गया होगा. यू कैन सी. ओके, हमारा अजम्पशन करेक्ट है, नल गया. अब क्यों, देयर
is a problem over here. I को जो modified value assign हो रहा है वो value नहीं ले रहा है, वो actually लेना चाहिए था. So if it is not selected तो वो else में जाएगा, I am equal to वो image आ जाएगा. So now in this case अगर वो ऐसा value नहीं ले रहा है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, जो मैंने लास्ट बैच को भी बोला था कि जहाँ पे तुम लोग इमेज ये सब कंट्रोल ले रहे हो वहां पे और एक कंट्रोल लेना पड़ेगा तुम लोग को, हिडन फील्ड. मतलब जो सिलेक्टेड इमेज रहेगा, जो भी इमेज है वो सीधा स्टोर हो जाएगा हिडन फील्ड में. ओके, तो यहाँ पे खाली हिडन फील्ड 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू दैट इमेज. एंड जब इमेज सेलेक्ट फाइल अपलोड सेलेक्टेड नहीं है तो वहां पे क्या जाएगा, हिडन फील्ड 1 डॉट वैल्यू. ओके, डन. तो अब क्लिक ऑन एडिट अगेन. कुछ फाइल नहीं दिख रहा है तो अभी तो मुझे असाइन करना पड़ेगा. सो लेट्स सी. आ गया वो इमेज. ओके, ऑन क्लिक ऑफ एडिट. अब देखो ये वाला इमेज सपोज मैं चेंज नहीं करती, यहाँ पे एक्सेल लिख देती हूँ, जो शर्ट का प्राइस है वो 500 कर देती हूँ. ओके, सो यू कैन सी द एज इट इज इमेज इज अप्लाइड. सो अंडरस्टूड हाउ दिस ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड. नाउ इन द सेम वे हम लोग को डिलीट का भी चेक करना है. तो डिलीट का कोड तो मैंने लिखा था, जस्ट चेक फॉर द डिलीट. यू कैन सी अगर मैं डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक करूंगी तो ऑपरेशन फेल. Select checkbox first. Okay, and the data will not be deleted. If I click on yes, then only the data will be deleted. Okay, but अभी गड़बड़ किधर हुआ, हम लोगों ने कोई तो डेटा मैंने सेट नहीं किया. कमांड कनेक्शन तो दे दिया, कमांड टाइप दे दिया, एक्शन इज डिलीट, प्रोडक्ट. ओ, you can see the mistake which I have done over here is query string में मैंने क्या पास किया, PID, बट मेरे पास query string का नेम क्या है, ID. Okay, this is what the issue is and that's why जो हम लोग का like you can say required output था वो नहीं मिला वहां पे. रिफ्रेश करो. If I'll click on delete, are you sure? So yes, delete. You can see the data is deleted and only one product is displayed to the user. Understood? यहाँ तक सबको समझा? This is our overall admin part. Okay. Okay. So, any doubt in this? Next is यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो था वो कंप्लीट हुआ. नाउ तुम लोग को ये पूरा पार्ट कंप्लीट करना है. नेक्स्ट थिंग, कल का प्रैक्टिकल कितना लोगों ने कंप्लीट किया, स्टेट मैनेजमेंट एंड डेटा सोर्स कंट्रोल 1 का? मी माझं झालं ना डेटा सोर्स माझं पण झालं. ओके, ठीक है. डू वन थिंग, लाइक इफ योर लैपटॉप इज कनेक्टेड जस्ट शेयर द स्क्रीन, बिकॉज समटाइम्स मुझे बाद में टाइम मिलता है नहीं मिलता, सो बेटर मैं अभी चेक करके ले लेती हूँ. ओके, हाँ, तो वेट, मैं मेरा स्क्रीन शेयरिंग जो है वो क्लोज कर देती हूँ सो दैट तुम लोग शेयर कर पाओगे, या फिर ट्राई करो वहां से शेयर करने के लिए. चेक कर दे कि मेरा भी स्क्रीन शेयर है तो तुम लोग कर पाते हो कि नहीं. लॅपटॉप नाही ना. काय झालं मग तू तर बोललेला की नाही ना तुझं आता. कंप्लीट झाल्यावर तुम्हाला सेंड करणार होतास, हा मॅम, माझं ते पण तर नाही कंप्लीट केलंस. माझं कंप्लीट होतं मॅम, पण मी सेंड करायला चाललो ना, तर माझा मामाच आहे ना, द्यायला झालं लॅपटॉप. मी आज करतो मॅम तुम्हाला दुपारपर्यंत, ते लंचला बसल्यावर नाही तर कधी फ्री झाल्यावर. ट्राय कर, मला आज हवेत ते प्रॅक्टिकल. कोमल यू कनेक्ट. हा मॅम, एक मिनिट. हा, तू तिथून शेअर स्क्रीन कर, होतंय का बघ. नसेल होत तर मी माझ्या आधी सगळ्या स्क्रीन बंद करते, क्लोज करते. हा हा,
एंड देन उसके बाद सानिया तुम कर लेना। सुनिए ना, मेरा एसक्यूएल सर्वर का प्रॉब्लम होता है, मैं आपको हाँ तो कनेक्ट कर, मैसेज। मैं प्रॉब्लम देखती हूँ ना कि क्या हो रहा है वो, ठीक है मैम। बिकॉज वो भी तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। एंड चित्रा, व्हाट अबाउट यू? कंट्रोलचं केलं UI इंटरफेस. हा, जेवढे केलेत ते दाखव मला फक्त. होतोय कोमल कनेक्ट ते? ओपन होतं मॅम एक मिनिट. अच्छा, हा, मला वाटलं तू ऑलरेडी लॅपटॉप कनेक्ट केलेला आहेस. मी लॅपटॉपच कनेक्ट केलेला. अच्छा. आणि मी मगाशी काय बोलली, मी तुम्हाला काहीतरी सांगेन असं बोलले की ऍट द एंड ऑफ द लेक्चर. मी आता विसरली काय सांगणार होते. शेअर झाली का मॅम स्क्रीन? हा, झालीये, म्हणजे होती आता. कॉन्सेप्ट बोलत राहतो. स्टार्टिंग टू शेअर कंटेंट असं आलंय. बट अजून लोड नाही झालीये. हा, ओके, झालं शेअर. दोन्ही डेटा सोर्स मी केले फक्त. सगळे म्हणजे तू कंट्रोल्स. ग्रिड व्ह्यू वाला आणि कंट्रोल्स वाला केलायस, रिपीटर वाला नाही झाला अजून. नाही, रिपीटर वाला नाही झाला. आणि त्याच्या आधीच झालंय सगळं, सेशन 2 स्टेट वगैरे मॅनेजमेंटचं. झालंय. हा, ते झालंय. ओके ओके, वेट, एकदा जस्ट रन जर करते आहे. आणि आउटपुटची विंडो शेअर करायची असेल तर कसं शेअर करू? न्यू तिथे बघ शेअर ऑप्शन शेअरचा ऑप्शन येतो. हा, वरती बघ शेअर. क्रोमच्या इथे शेअर म्हणून लिहून येईल छोटस असं. ठीक आहे, आता ती स्क्रीन विजिबल आहे. ओके, हा तुझा फर्स्ट, सॉरी, सेकंड वाला. हा, रिफ्रेश करून माझ्या ह्याच्यात नाही होत, मला प्रत्येक वेळी नव्याने स्टार्ट कंट्रोल करायला. F5 कर. तू ऍक्च्युली हे करतेयस ना, F5 ने करतेयस ना, मग डिबगिंग मोड मध्ये जातेयस. डिबगिंग मोड मध्ये तुला एव्हरी टाइम रन करावं लागणार, असं असतं ते. HR. Okay, so this is one, like second one, that is form view and etc. लिस्ट व्ह्यू आहे. ओके, फर्स्ट याच्यामध्ये तू काय केलेलंस? हा आपला सेकंड प्रॅक्टिकल होता. फर्स्ट मला ग्रिड व्ह्यूचा होता. हा.
हा फर्स्ट शिकवलेलं मी. देन सेकंड हा. हे शिकवलेलं. मग तू जो फर्स्ट वन असं नाव दिलेस .htx त्यात काय नाही मी केलंस? ते पहिलंच आहे. पहिलं पेज ओके. आहे ते मी असं अँड जे सेशन मॅनेजमेंटचे होते ते फक्त जे सेशन मॅनेजमेंट वाला होतं ते केलं की जे मी रजिस्ट्रेशन सोबत करून दिलेलं ते पण झालं? रजिस्ट्रेशन सोबत करून दिलेलं ते पण झालंय. ओके ठीक है, ओपन कर. तो हॅलो सानिया आहे तब ना तक ते तुम्हारा मला तिथेच लैपटॉप ऑन राहतं. करके रखा. हाँ क्या बोलती है? तो जे वन हॅलो में होतं ना, हाँ हाँ. आपण हॅलो युजर नेम प्रिंट करत होतो ना, तर ते हॅलो विजिबलच राहतात. मग तो तू आधी स्टॅटिकली प्रिंट केलेला असणार आहे. पहिले म्हणजे तर आधी तू लिटरल लिटरल वरती असाइन केला असेल. मी तो डायरेक्टली डायनेमिकली दिलेला. म्हणजे जर सेशन असेल अलोकेटेड किंवा कुकीज असेल तरच ते विजिबल होत होतं, अदरवाईज नाही. इथे वरती स्क्रोल कर कोडवर. हा इथे बघ आता तू काय केलंस, वेट हा अजून याच पेजवर वरती स्क्रोल कर. सॉरी युजर मास्टर .cs वर. कारण तिथे आपण हॅलो युजर नेम दाखवतोय ना. नाही तू तर प्रॉपरली इकडे असाइन केलेस. मग लेबलवर ऑलरेडी काही आहे का टेक्स्ट? कारण इथे नाही बरोबर लेबलला दिलं. आधी काहीच टेक्स्ट नाहीये ना, कारण मी लेबलचा टेक्स्ट बघ एम्प्टी केलेला मॅन्युअली. लेबल घेतलेलं टेक्स्ट एम्प्टी केले मी नाही पण. बरोबर आहे एम्प्टी. हा पण हे बघ इथे तू पुढे हेलो असं लिहून ठेवलेलं आहे. 4 कलर इक्वल टू व्हाईटच्या पुढे. ते काढ. तसं हा. नाही लिहायचं तिथे. ते एम्प्टीच ठेवायचंय. म्हणून तुझा तो हॅलो बाय डिफॉल्ट येतोय. ठीक आहे. सेव्ह कर आणि आता तिकडे फक्त रिफ्रेश कर. आता आला वरती ठीक हॅलो आहे. प्रिंट. हा बरोबर. अँड देन लॉग आउट. तरी फक्त आता पण ते तू हॅलो आता करते. नाही ते काय येतंय माहितीये का, तू डिबगिंग मोड मध्ये रन केलायस ना, जसं मी बोलली. हा डिबगिंग मोड हा. मध्ये परत परत रन करत राहावं लागतं. आपण फक्त F5 ने नाही होत ते. म्हणजे तर नेक्स्ट टाइम नाही ओके होणार ना आता. नाही. ओके सो दिस इज ऑल्सो कम्प्लिटेड. आणि नॉर्मल जे स्टेट मॅनेजमेंटचं होतं तेही कम्प्लीट केलंयस. हा जे मी जस्ट बेसिक कुकीज हिडन फील्ड्स शिकवलेलं ते. हो ते गेले. फक्त आता ओके माझं ठीक आहे. कालचा रिपीटरचं आणि स्टोअर आजच्या प्रोसिजरचं प्रोजेक्टचं राहिलं, मी आता करेल. हा ठीक आहे चालेल. ठीक आहे आता तू तिथून क्लोज कर, म्हणजे ते स्टॉप शेअरिंग कर तिकडे. स्टॉप कर. स्टॉपचं ऑप्शन येईल तिथे. ठीक है सानिया, अब तुम कनेक्ट कर लेना. तुम्हारा जो एसक्यूएल सर्वर का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वो वाला स्क्रीन शेयर करो. हाँ मेरा लैपटॉप ही ओपन नहीं हेलो क्या बोल रही हो? लैपटॉप ही ओपन नहीं हो रहा है. ओके चित्रा तू कनेक्ट कर तोपर्यंत. तब तक सानिया तू ट्राय कर. एंड सुबोध यू हैव टू डू वन थिंग. जब भी तुम लाइक प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हो, ओके, जस्ट एटलीस्ट टेक अ स्नैप ऑफ योर कोड एंड लाइक, या फिर लाइक एटलीस्ट आउटपुट का तो वो स्क्रीनशॉट निकाल के या फिर लाइक पिक कैप्चर करके सेंड कर देना मुझे. ओके जस्ट बिकॉज लैपटॉप तुम्हारे पास ऑल टाइम अवेलेबल नहीं रहता. सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड थ्रू ईमेल, एटलीस्ट वो इमेजेस तो सेंड करके रखो तब तक. एंड देन जब भी ये लैपटॉप मिलेगा वो मुझे लाइक पूरा प्रैक्टिकल चाहिए वहां पे. ओके ऐकतोय सुबोध? हॅलो. हॅलो ऐकलंस का मी काय बोलली ते? हा मॅम. हा हा. हा ठीक आहे. चित्रा तू कनेक्ट कर आता. हॅलो काय बोलतीयस? वेबएक्सचा डाउनलोड करते बट एनी डेस्क नाही करू शकत. हा चालेल. एनी डेजचा मला आयडी दे तोपर्यंत. मी इथून एनी डेजची स्क्रीन सगळ्यांना शेअर करेन. मॅम मी माझे पण शेअर केले. हॅलो काय बोलतीयस? प्रोजेक्टचे डिटेल्स शेअर केलेत आणि मी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स घेतलंय, जसं ओके यात्रा.com. मेल आय थिंक आज चेक नाही केला मला वाटतं मेल मी. बट ठीक आहे मी ते चेक करते.
ठीक आहे. ठीक आहे. वेट मी एनीडेस्क ऑन करते. मला तू आयडी दे. हां. तुझा नाही, तुझा आयडी नसेल माझ्याकडे मला वाटतंय. सांगू आयडी इकडेच? हां, बोल, बोल. 59 59 ना? हां. 59 पुढे 74 74 550 550 0. हां. हॅलो? हां मॅम. एवढासाच आहे कारण की टोटल 9 डिजिट लागतात. हो 659 574 550 9 अच्छा 659 वेट थांब. 659 माझ्याकडून काही मिस झालेत. 659 देन 574 अच्छा 574 अँड देन 550. राइट. हां. ठीक आहे मी कनेक्ट करतीये. तिकडे ॲक्सेप्ट येईल. हां. करू ना? ठीक आहे रन कर आता. हे तुझं कुठलं होतं? डेटा सोर्स कंट्रोल मधलं फर्स्ट वालं. समटाईम्स तो ब्राउझर ओपन व्हायला वेळ घेतो. खाली तुझं रनिंग आहे. नाही रन केलंस तरी चालेल. रनिंग आहे तुझं. हे बघ इथे जो सिम्बॉल दाखवतोय ना इट मीन्स इट इज रनिंग. ओके बट ओपन युअर ब्राउझर बिकॉज ब्राउझर ओपन व्हायला तो फर्स्ट टाइम वेळ घेतो. मॅन्युअली ओपन करून ठेव म्हणजे लोडिंग टाइम जरा डिक्रीज होईल. मग तू फक्त हे एकच प्रॅक्टिकल केलंयस का? हॅलो? हो मॅम मी वेबसाईटचं आज कंटिन्यू स्टार्ट करेन. नाही आणि त्याच्या आधीचं जे स्टेट मॅनेजमेंटचं होतं ते? स्टेट मॅनेजमेंटचं नाही केलं. ओके तेही कम्प्लीट करायचं बिकॉज ते इम्पॉर्टंट आहे. ओके आणि मी तो जो तू सिनारिओ जो काही सेंड केला असेल मी अजून चेक नाही केला. मी चेक करेन तुला त्याचे अपडेट्स पण देईन. जर काय कधीपर्यंत त्या सांगते? म्हणजे आता हे रेग्युलर दुपारपर्यंत सांगेन तुला. तू आता स्टार्ट कर प्रोजेक्ट. तुला जेव्हा पण वेळ मिळेल तेव्हा मी तुला दुपारपर्यंत इनफॅक्ट आता वेळ मिळाला तर मी आता लगेच चेंजेस करून देते. ठीक आहे. ठीक आहे. मला वाटतं एकदा परत रन कर. कारण तो लोड व्हायला खूपच वेळ घेतोय. कारण आता क्रोम तर झालाय ओपन त्यामुळे फक्त रन कर. आणि भाग्यश्री तुला जे चेंजेस सांगितलेले ते केले तू काल? हो मॅम झाले. हां ठीक आहे. हे रनिंग आहे तर मग प्रॉब्लेम काय आहे?
बंद करून स्टार्ट करू? हा सध्या आता तोच ऑप्शन आहे असं वाटतंय. कारण तू खूपच जास्त वेळ घेतोय. क्लोज द प्रोग्राम वर क्लिक कर. झाला रन पटकन. ओके. आणि थर्ड ड्रॉपडाऊन लिस्ट नाही केलंस त्याच्यामध्ये? ओके ठीक आहे. मग ते ट्राय कर लवकरात लवकर हे प्रॅक्टिकल्स पण कम्प्लीट करायला. बिकॉज आता इवन इफ यू विल चेक आतापर्यंतचाच आपला आता कोड खूप पुढे गेलाय ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह लाईक वेबसाईटचा. सो बेटर आता सॅटर्डे संडे तुम्हाला हे कम्प्लीट करायचं है. आई एम सेइंग दिस टू एवरीवन. ओके, सबको ये कंप्लीट करना है. लाइक मंडे को आई विल चेक कि तुम लोगों ने जो मैंने वेबसाइट बनाया था, आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर प्रोजेक्ट. ओके, एग्जैक्ट एज इट इज एग्जाम्पल जस्ट तुम लोग ट्राई करके देखोगे फॉर प्रैक्टिस पर्पस. एंड जो कंप्लीट होगा आई विल चेक दैट एग्जाम्पल ऑन मंडे. ठीक है. ओके, बिकॉज आई एम गिविंग यू 2 डिफरेंट लाइक 2 डेज, सैटरडे संडे पूरा तुम लोग जितना टाइम लेना है ले लो एंड वो कंप्लीट करो. ओके, एंड उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगा जस्ट कल तक, संडे तो आई विल ट्राई. ओके, बट अगर कल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है देन आई विल ट्राई टू कनेक्ट. संडे को पॉसिबल हुआ तो मैं दोपहर में ही कनेक्ट कर सकती हूँ, नॉट इन मॉर्निंग और इवनिंग. तो अगर कुछ इश्यू आएगा तो मुझे बता देना. ओके ठीक है. सो विल स्टॉप फॉर नाउ. ओके, नेक्स्ट वीक का तुम लोग का अभी ये तो पहला टास्क है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट. सेकेंड टास्क विल बी फॉर मॉक. वो कौन सा देना है क्या वो मैं बता दूंगी. ओके, सानिया तुम्हारा पीसी नहीं ऑन हुआ क्या अभी तक? नहीं ऑन हो रहा है, हाँ, नहीं ऑन हो रहा है. तो जब भी ऑन हो जाएगा ना तू मुझे जस्ट पिक निकाल के सेंड कर कि क्या एरर आ रहा है तो मैं चेक करके बता देती हूँ. हेलो, हाँ क्या बोल रही है? पिक निकाली थी मैं, आपको सेंड करती हूँ व्हाट्सएप पे. हाँ चलेगा, अभी करेगी तो भी चलेगा, मैं बता के रख देती हूँ क्या करना है. ठीक ओके है मैम. ठीक है चलो. एंड आई विल डू वन मोर थिंग. ड्राइव पे आज के डेट का फोल्डर बना के डेलीगेट्स फोल्डर में ही जो अभी मैंने प्रोजेक्ट किया है वो अपलोड कर दूंगी. ओके, यू जस्ट हैव टू चेक एंड डू द सेम. ओके ठीक है चलो, नाउ आई विल एंड द मीटिंग.